चलो, तो आज क्या है? नोज। तो डन विद ईयर, सब कुछ आ गया ईयर में। हाँ जी, बताइए। Let's move on to the pectoralis flap. Start with Blood ईयर. pressure's dropping. So Heart rate is you're up. confident Push IV enough to fluids, give start with the epinephrine nose 1 then? milligram, then start a drip. Yes, ma'am. Perforation. There's too much tissue damage. Okay. Infection? So We'll as see. we spoke of why ear is important, so let's just start with why nose is important. When nose is concerned with olfaction, which again has a protective function. अच्छा, so olfaction मतलब हमने खाना सूंघना और ये सब भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में. Can't we do it without that? I'm sure not. अभी जिन जिन को भी कोविड हुआ होगा उनको पता चला होगा कि how important smell is. Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों तुम्हें हुआ था? No, मैम मुझे नहीं हुआ था, बट मैम पता चलता था क्या पता चलता था? कि मैम मतलब ऑल्फैक्शन की मैंने कितना दिक्कत आता है. बाकी मैम एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो है ही ऑल्फैक्शन का. जैसे मैम कभी पॉइजन वगैरह को स्मेल करना होता है तो वो फिर नहीं खाते. जैसे एनिमल्स कोई खराब फूड भी होता है उसको भी स्मेल करते हैं पहले फिर खाते हैं. तो मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन तो है ही ऑल्फैक्शन का. जी, ओके, ठीक है. But what is more important than olfaction for nose? Is there any other function that we are really looking forward to and that's the reason that we have got a nose? Definitely मैम olfaction is one रेस्पिरेशन. of the most important things. मैम रेस्पिरेशन. Respiration. Okay, so basically it's the gateway of the respiration as we can say. ठीक है, obviously respiration जो major part होता है, for that we have a proper respiratory system which involves the lungs and everything. But nose, for sure, we cannot rule out the importance of nose into this functionality of respiration as it bridges, it's the main gateway where it keeps a checkpoint on what all is going into the respiratory tract and most of the issues are dealt there दरबान की तरह. ठीक है, so it's a very important job there. Okay, so they have to look forward कि what type of a thing is coming. So basically क्या है, ये check point है. The check point है to firstly see the quality of air, to improve the quality of air, to see whatever the thing is coming with the air, whether it is required by the body or not, to be expelled or to be taken in. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ एयर जो भी हमारे विच इज़ गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड इज टेकन केयर ऑफ. ठीक है, so this is one work as a part of the respiratory system. The second work would be the ventilation of the paranasal sinuses. Okay, so why is it important? I'm basically summarizing the entire class before it because जब हम pure anatomy में जाएंगे, I'm pretty sure there is no much interest left because since it's anatomy, we just can't have a lot many things into it, right? But I'm just trying to pre-conclude the class पहले से ही कि what all we are looking forward to in the entire lecture. So secondly, why is it important? Paranasal sinuses जो हम बात करते हैं, why it is important to ventilate them? मैम अगर वेंटिलेट नहीं करते तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है और उसके बाद फिर पस बन जाती है. तो पहली बात है, नाम ही है साइनस. Okay, it's like a sinus. Okay, so it's an air sinus, air-filled sinus, right? It's a place. ठीक है. तो अब genesis की बात करें तो why did we have something like paranasal sinuses in the cranium, human cranium? कोई बता सकता मैम है? उसको लाइटर बनाने के लिए. बिल्कुल. So that was the idea. Okay, जैसे जैसे हम इवॉल्व करते गए, हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी टू अकोमोडेट दैट मच ऑफ ब्रेन बिकॉज ब्रेन इवॉल्व कर रहा था. ये तो जो हम जो भी कहते हैं कि ग्रे मैटर वाइट मैटर ये सब कुछ जब इवॉल्व करने लगा, इट स्टार्टेड गेटिंग
huger in mass. Okay, so we had to expand the cranium. When we are going to expand the cranium, obviously it is going to become heavier in weight. So eventually, when it started getting heavy, so we had to have some mechanism जिससे कि हम lighten up कर सके. Because अगर head ही heavy हो जाएगा, so the entire working mechanism, जो भी एनिमल और ह्यूमन की हम बात करते हैं, तो उसमें ये दिक्कत आ सकती थी. तो hence the idea of paranasal sinuses came in. It was just a gap between the bones, if we talk about in a very layman language. तो वहाँ पे उन्होंने एयर फिल्ड गैप बना दिया जिससे कि वो लाइटन अप हो गया. दिस इज द होल आइडिया. सो अगर इन सारे साइनसेस को भी अगर हम वेंटिलेट नहीं करते हैं, बेसिकली इफ देयर इज नॉट अ रेगुलर cycle of air currents in these, so as one of our friends said, exactly, if there is a stagnancy of the air, the stagnancy of things inside, it would lead to stagnation of the mucus which is produced in such sinuses, because these are all mucus lines. Hence, these will end up getting infected, and obviously, hence, all the pathological changes that we eventually see and the diseases we keep talking about in many other classes corresponding to this. So, ये जो है, these were the major roles, and these are the major roles of nose, from where the idea of a sensory organ, definitely the sensory organ, because it helps, it aids, and it's the primary organ for olfaction, definitely. So this is how you can conclude about कि हाँ nose की importance क्या है, and why do we really need to go to understand it. So having explained this, having said this, so we can start with the anatomy to look exactly which is important. Obviously, as you said, this is a surgical branch. We are going to learn more about it because all the anatomy is important surgically in a way or so. ठीक है, so if we look into nose, so अगर हम nose की बात करते हैं, so let's just directly go into this. How does it look? How does it is divided? So this is what exactly it is. Okay, so firstly it is divided into an internal nose and the external nose. Okay, so if we see it externally, so this is the root of the nose. Okay, and this is the apex of the nose. That's what you need to know. ये जो बाहरी हिस्सा होता है, ये जो हम ये स्लोप डाउन देखते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज द डॉर्सम ऑफ द नोज. ओके, देयर आर टू anterior opening into the nasal cavity, which is a part of the internal nose. This is known as nares. Okay, दोनों नेजल कैविटी के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेजल सेप्टम नाम की चीज आती है जो बाहर से स्किन लाइंड होती है और अंदर इट्स अ प्रॉपर सेप्टम. ओके, एंड देन this cartilaginous protuberance that you can see on either side, you know, just posterior lateral to the nares, is the ala. Okay, so this is how a nose is described as. So we can take it up one by one. We can start with the external nose first. So external nose जो होता है, again like ear, जैसे हमने बात किया था, वहाँ पे एक bony part होता है और एक cartilaginous part होता है. यहाँ भी the upper 1/3 part that we say is made out of bones, and the lower 2/3 is mainly comprises of the cartilage. So bony part की अगर हम बात करें तो it basically has three components. Okay, the first is the nasal bone itself. ठीक है, on either side, joined medially. Okay, the second is the nasal process of the frontal bone. So basically beneath it, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो हमारे जो nasal bone होते हैं, they rest on this frontal process of the nasal process of the frontal bone. So just beneath it you can see a projection which you won't be able to see over here. And these two जो हम nasal bone जो हम processes की बात कर रहे हैं, these two are further flanked by the frontal process of the maxillary bone. So this is the frontal process that you can see here of the maxillary bone on either side. So these are the three components of the bony part. Okay, so if we come down to the cartilaginous part, यहाँ पर हमारे पास दो मेजर कार्टिलेज होते हैं. एक तो लेटरल कार्टिलेज ऑब्वियस, एंड एक होता है जो होता है सेप्टल कार्टिलेज और द मीडल कार्टिलेज.
अब जो लेटरल कार्टिलेज होता है दैट इज अगेन ऑफ टू पार्ट विच इज द अपर कार्टिलेज एंड द लोअर कार्टिलेज. जो अपर कार्टिलेज होता है वी कैन सी इन हियर, राइट? On either side we have got an upper cartilage which joins medially to the septal cartilage. ये जो बीच में पे जो thin line दिख रहा है ये septal cartilage की strip है, इस पे जाके ये join in करता है. अगर हम lower cartilage की बात करें so it again has two parts. So one is the lower lateral cartilage, ठीक है, which is also known as the alar cartilage, जो हमने एला की बात करी थी वहाँ पर. So this is the alar cartilage, ठीक है, which is the lower lateral cartilage, and then there is a lesser alar cartilage which is these two. So how do we understand it? जो alar cartilage होता है it's a U-shaped cartilage. You can see it here. अगर हम if we see it from the down forward, then this is the lower lateral cartilage का alar cartilage part, ठीक है. तो उसका जो medial wall होता है it forms the columella, ठीक है. columella is what exactly जो आप अपने नाक के सामने देखते हैं ना यहाँ पर स्मॉल सेप्टल कार्टिलेज के आगे जो थोड़ी सी जो जगह होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस medial crust ऑफ द alar cartilage, ओके. और ये जो लेटरल क्रस्ट होता है यू शेप में जो लेटरल क्रस्ट है दिस इज दी दिस फॉर्म दी जो हम लेटरल कार्टिलेजेस की बात कर रहे हैं, आउटर लेटरल क्रस्ट. अब दो एसेसरी ऐसे एलर कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, विच कुड बी द सिसमोइड कार्टिलेज के नाम से भी हम इनको जानते हैं. These can be one or two in numbers, can be spreadly, can be widespread. कभी कभी साथ में रहते हैं, कभी कभी अलग तरीके से रहते हैं. And all these area that you can see, the left out area, this is again like in a U-shaped way. This is all what? Is all fibrofatty tissues. Okay, you got it? So this in totality makes your external nose ka part, the cartilaginous part. If you talk about the internal nose, I'll show you something else also. So this is another representation of the entire thing that we spoke of. Again, the nasal bone, the frontal nasal process of the frontal bone, and the frontal process of the maxilla. Three bones in the bony part. Then the cartilage का septal cartilage का एक part होता है और एक lateral cartilage का part होता है. Lateral cartilage is again divided into upper lateral and lower lateral. Upper lateral is straight enough, ठीक है, हमें एकदम क्लियरली दिखता है. जो lower lateral होता है since it has got a U-shaped cartilage, so the cartilage in totality has got two parts, which is like the medial crust and the lateral crust. Okay, so this is the lateral crust of the lateral cartilage, and then we have got the fibrofatty tissues and also accessory cartilages in the name of sesamoid cartilage. Understood? If we now talk about, okay, so this was the external ear, external nose, ठीक है. अगर हम इंटरनल नोज की बात करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेप्टम ऑफ द नोज एंड what are the parts of the internal nose? So basically internal nose is firstly is a so it has got two cavities, divided. Septal cartilage divides the entire internal nose, the proper internal nose, into two parts, which is the nasal cavities. Okay, so if we have to speak about the boundaries of the nasal cavity, the entire nasal cavity, so anteriorly these are bounded by the anterior nares. Posteriorly, it ends towards the nasopharynx through an opening called as posterior choana. Okay, then we have got a root, we have got a floor, we have got a medial wall and a lateral wall. Cool enough? So if we have to see this,
So we will first talk about, we can talk about the, so anterior part we have spoken about, we have spoken of the posterior part. Then if you want to see for the, okay, so here we are, no, this is not there, just give me a second. Okay, so anterior part हो गया, posterior part हो गया, nasopharynx का, ये anterior nerves, ठीक है. Roof की बात करते हैं तो it is basically formed by two bones, part of the ethmoid bone which is the cribriform plate वाला part, and the other is the sphenoid bone. Okay, so this forms the roof, and the floor is formed by majorly by जो anterior जो 3/4 होता है, it is mostly by the palatine process of the maxilla, okay, or the maxillary crest as we call it, and the posterior 1/4 is formed by the palatine horizontal plate of the palatine bone. So this is entirely like a box that now you can see. So now whatever we have to study is within this box. Okay. So we can first see the medial wall. So medial wall is the nasal septum. Nasal septum, as we speak of, again is formed of bony part and cartilaginous part. Okay. So bony part का जो हमने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली अगर हम कार्टिलेजेस पार्ट की बात करते हैं तो देयर इज समथिंग एज कॉल्ड एज सेप्टल कार्टिलेज, as is spoken of the quadrilateral cartilage or the septum cartilage. So it forms the major part of the septum, the nasal septum. Anteriorly हमने क्या बात करी थी, एक membranous area होता है और एक columella होता है, ठीक है. तो columella was the part of medial crus of the lateral cartilage, right? So that form the columella, and इन दोनों के बीच में एक membranous part होता है, ठीक है. यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये membranous part है, ठीक है. ये membranous part होता है, and then the further is the septal cartilage. So if you want to actually feel it on your nasal septum, you can very well see. जो बाहर आपको दिख रहा है वो columella है, ठीक है. You can feel the cartilage. उसके बाद आप देखना एक गैप है दोनों कार्टिलेज, एक कार्टिलेज के रिंग है, उसके बीच में एक फाइब्रोफैटिक टिश्यूज की तरह एक गैप है विच इज द मेम्ब्रेनस कार्टिलेज. उसके बाद आपको एक कार्टिलेज की एंटीरियर बॉर्डर फील होगी. समझ में आ रहा है? तो दीज आर लाइक द थ्री पार्ट्स ऑफ द cartilaginous part of the nasal septum. If you come to the bony part of the nasal septum, so we have to understand, हमने जो की बात करी, हमने जो फ्लोर की बात करी और हमने जो पोस्टीरियर वॉल की बात करी, इन्हीं के सारे एक्सटेंशन ऑफ बोन की तरीके से हम देख सकते हैं. सो बेसिकली देयर वुड बी समथिंग एज द नेजल स्पाइन. ओके, देयर इज अ पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है, एंड विच कंट्रीब्यूट्स इनटू द, so okay, we see the spine of the frontal bone, this contributes in the nasal septum. Okay, then there is the ethmoidal, the perpendicular plate of the ethmoid. Then there is the cribriform plate of the ethmoid. Okay, then we have got the crest of the sphenoid, and then we have got the rostrum, which is also known as the rostrum of the sphenoid. Then niche the other major part is the vomer bone. Okay, along with the maxillary crest and the horizontal plate of the palatine. Okay, so all of this in totality makes up the bony part of the nasal septum. Okay, ये important इसीलिए है, this is a very important question for you, ठीक है, because surgically it is important, because all the surgeries that we do, septoplasty, SMR, okay, it is based on the knowledge of the nasal septum. You should be knowing what part has to be taken out, what part has not to be taken out, okay, which how much is to be left to maintain the integrity of the dorsum of the nose, ठीक है, तो इसीलिए important होता है. So this was the nasal septum. अगर हम ये देखें तो आप ये देख सकते हैं जो नेजल कैविटी की हमने बात करी थी, फिजियोलॉजिकली इसका ऐसे ही कुछ है. आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज ओरल कैविटी corresponding to which are the nasal cavity,
The posterior part is the nasopharynx, where the nasal cavity opens up into the nasopharynx through the posterior coinas, the right, and this is the soft palate, end of the soft palate, okay, corresponding to the coinas, and then just below the nasopharynx is the oropharynx, okay, the oral cavity से connected है. So this is how it actually looks like, okay. And if you see like in a bony cut, तो ऐसे posteriorly ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. ये posterior part of the nasal septum है, which is a part of the vomer. हमने बात किया ना posterior end में क्या आ रहा है, vomer आ रहा है, ठीक है. And then we can see these are the two coinas, ठीक है. And floor पे हमने क्या बात किया था, posteriorly क्या आता है, palatine bone. So these are the horizontal plates of the palatine bone, okay. And this is anteriorly what we can see is the maxillary bone, okay. So this is how it looks. This is the what? Foramen magnum. Foramen magnum. Okay, and this is what? Stylomastoid process. Stylomastoid process or styloid process. Styloid process. अरे एनाटॉमी वाले बच्चों बताओ, जस्ट पास एनाटॉमी. Styloid process. styloid process, इसमें अटैचमेंट क्या होती है? तो स्टाइलोहाइड मतलब पूरा स्टाइलोइड अपरेटस आता है इसका. इसके अंदर 3 मसल्स होती थी, 2 लिगामेंट होते थे. 3 मसल्स के नाम है स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोहाइड, स्टाइलोफ्रिंजिस, और हाँ. 2 लिगामेंट थे, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, और एक और लिगामेंट था स्टाइलो मैंडिबुलर. हाँ जी, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट. खत्म. वेरी गुड. पढ़ाई करिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में. ओके, ठीक है, चलो इनफ ऑफ रिविजन ऑफ एनाटॉमी. हम वापस से नोट्स पे आते हैं, ठीक है. तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे करस्पॉन्डिंग दिखा देते हैं. ये सारे डिस्कशन वैसे होगा आगे, ठीक है. तो अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें, ठीक है, तो एक रेस्पिरेटरी रीजन होता है और एक ऑल्फैक्टरी रीजन होता है. तो द लोअर पार्ट corresponds to the respiratory region, मेजरली बिकॉज कि मोस्ट ऑफ दी जो हम बात करेंगे, जो पैरानेजल साइनसेस के जितने भी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे लोअर पार्ट के थ्रू होता है. और हमारे जितना भी ऑल्फैक्शन के लिए जितने भी नर्व्स जो हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब और सब कुछ, जो ऑल्फैक्टरी नर्व का जितना भी जो इंसेलवेनमेंट है वो अपर पार्ट में है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड इट इनटू फिजियोलॉजिकली ऑल्सो, ठीक है. As we have spoken of the medial wall or the nasal septum, now we can take ahead the lateral wall. Okay, so now lateral wall is a very, very, very important and a very elaborate topic for you. Okay, why? आप लोगों में से अगर किसी ने ढिंगरा भी पढ़ के भी आएगा तो आपने देखा होगा कि बाकी सारे वॉल्स को ऐसे ऐसे ना 2-2 लाइन में बता दिया है, बट लेटरल वॉल शुरू होके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है. सो कोई जिज्ञासा जागी कि ऐसा क्या महान काम कर दिया लेटरल वॉल ने कि उसके ऊपर 2 पेजेस हैं और बाकी सब के लिए 2-2 लाइन है, और या फिर ऑथर को इतना लिखने का मन नहीं किया, या फिर ऑथर को लेटरल वॉल ज़्यादा आता था, समथिंग लाइक दैट. हम ओपनिंग्स बहुत होती हैं लेटरल वॉल पे. ओपनिंग बहुत होती है, लेकिन क्या मतलब क्या फ़ायदा होना ओपनिंग्स का? ठीक है, ओपनिंग्स है, बट क्या हो जाएगा उससे? वही है ना, मतलब पैरानेजल साइनस आके ड्रेन कर रहा है, तो मतलब अगर ब्लॉक वगैरह होगा तो फिर पैरानेजल साइनस का वही इन्फेक्शन हो जाएगा. और मैम यूस्टेचियन ट्यूब भी ओपन कर रही है, और मैम कॉन्कर्स जी हैं, तो अगर उनका इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, फिर वो निजल पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं. और तो और मैम लेटरल वॉल पे हम लोग को पॉलिप्स भी मिल जाते हैं इतने बारी. Okay, so basically, exactly, you are very right about it. So if you put it up in a better way, so basically it is a complex. Okay, nose and paranasal sinuses are always spoken of in one term, right? It's always rhinosinusitis. Okay, I mean majorly when we talk about it, it's always rhinosinus. Okay, nose and sinuses are a complex. Okay, so one or the other
are directly or indirectly are going to affect each other in their pathologies, in their functionalities, in their physiological axis. Okay, तो ये सब तो रीजन था ही था, बट इसके लिए हमें ये जानना जरूरी था. बट why it got important? Because surgically, okay, so the lateral wall is for us is the gateway to most of the sinuses. Okay, पहले क्या होता था जब साइनसाइटिस होते थे या फिर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड साइनसाइटिस होते थे जिसमें वो स्प्रेड कर जाता था, बोन्स को इरोड कर देता था, तो वी हैव टू इवेंचुअली व्हाट वी हैव टू डू इज सर्जिकली ट्रीट देम, राइट. ठीक है, उनको हमें क्या करना था, हमें बेसिकली जितना भी वहाँ पे जो हमने बात करी कि इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है, हमें वो पस ड्रेन करना था, हमें वो इन्फेक्टिव म्यूकोजा हटाना था, रीजनरेशन के लिए उसको स्पेस देना था, वेंटिलेशन रीस्टोर करना था. तो ये सारी चीज़ें जब हम हमारी जो प्रायोरिटी बनी एज अ ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट. अब सर्जिकली अगर देखो तो बहुत सारे, आई मीन व्हेन यू बी टॉट फर्दर you will get to know there are various surgeries, okay, with various route of entries to these sinuses. बट वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते थे, यू नो. फॉल भी की बात करोगे तो नीचे से एंट्रोस्टमी कर रहे हैं, मैकुलर एंट्रोस्टमी कर रहे हैं, मुंह खोल कर के ऊपर में ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है. देन अगर हम फ्रंटल सेफिनेशन की बात करें तो ऊपर से हम उसको बोर होल कर रहे हैं और फिर वहाँ से एंटर कर रहे हैं फ्रंटल साइनसेस. So that used to be very traumatic to the patient, also not very cosmetically right, and obviously it's the disease is a huge disease, but the treatment has to be very smaller one as compared to the destruction that we were causing in the entire brain setup. So eventually, with the advent of time, we got into endoscopy. We realized we can enter, not like before the era of the endoscope also, we realized that there could be, you know, possibility of entering these sinuses through the lateral wall itself, because हमारे पास बहुत सारी ओपनिंग है, हमारे पास बहुत सारे डिवॉइड ऑफ बोन एरियाज हैं जिनके थ्रू हम सिर्फ अगर हमें कट लगाते हैं और वी जस्ट try to make we do some enterostomy over at that end, we can enter into the sinuses and our job can be done. Obviously, having said that, with even more the use of endoscopes and finer detailing of the endoscope, then finally came a surgery known as FES. Okay, so what is FES? If anyone can tell me, the full form of FES is functional endoscopic sinus surgery. ठीक है? So it says it all. It's a sinus surgery, endoscopically done. And what does function over here mean? Why do we call it a functional endoscopic sinus surgery? Come on, quick guesses. ये तो हम एंडोस्कोपी की तरह ही है कि एक एंडोस्कोप लेके हम किसी अपर्चर के थ्रू वहाँ अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट. Functional वर्ड का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है? What does it mean here? Functional. किसी को पता है? Okay, so the word functional here means you are restoring the functionality of the sinuses. Okay. ठीक है, तो hence it is called as functional endoscopic sinus surgery. ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है. Why is it called as functional? Because आप उसके फंक्शन को रिस्टोर कर रहे हो, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स दी जब आप सर्जरीज के बारे में पढ़ोगे तो द मेन एम फॉर द सर्जरी इज टू रिस्टोर फंक्शन. तो कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होते हैं, तो कई बार यहाँ पे कहा भी जाता है कि वंस यू हैव अचीव्ड योर एम, that you know that you have cleared the entire infection, the pus, the polyps, whatever that is, the degraded mucosa, and you know that the ventilation has been restored, it's enough of the space, now there is no congested mucosa and everything, you can just stop your surgery right there and then. Okay, and because that justifies that it has been a functional endoscopic sinus surgery. Okay, you have done your bit. Okay, need not to go beyond it if it is just for you just want to go beyond फॉर एक्सप्लोरिंग मच ऑफ इट. ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है डिजीज था और इससे वेंटिलेशन हो सकता है, इससे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस इस्टेब्लिश हो सकता है, यू जस्ट स्टॉप इट.
Okay, a little high level, but this is what exactly it means. You need to understand why PES. Hence, bilateral wall का study became so important in this recent days. Okay, because obviously endoscopy is the future. You will be eventually doing endoscopies wherever and whichever branch you take in. So हम वो anatomy ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे. So if we see, so basically, so what does lateral wall has then? So it has got four turbinates. Now what are turbinates? Turbinates are the protrusion over bony protrusions. Okay. तो जो हमारे यहाँ पे जो लेटरल वॉल लेटरल साइड ऑफ जो हमारी नेजल कैविटी है वहाँ पे जो भी बोन्स हैं फेशियल बोन्स हैं उनके कुछ कुछ एक्सटेंशंस हैं उनके कुछ प्रोजेक्शंस हैं विच इज टुवर्ड्स द लेटरल वॉल एंड दीज आर ऑल म्यूकोजल लाइंस. ओके, so if we name them, these are inferior turbinate, middle turbinate, superior turbinate, and the supreme turbinate. Okay, so these projections that you can see, okay, middle inferior turbinate, middle turbinate, and superior turbinate, and in very few cases we can also find the supreme turbinate, also known as the concha. यहाँ पे concha की तरह labeled है, वहाँ पे turbinate भी labeled हो सकता है. अगर इनके साथ ही corresponding इनके जो नीचे जो एरिया चल रहा होता है, ठीक है, these are known as the meatus. What are meatuses? These are the grooves. Okay, so as per the name of the turbinates, these are the inferior meatus, this is the middle meatus, this is the superior meatus. ठीक है, so this is just like to give you an anatomical idea how does it look. ठीक है, ये दिख रहा है, ये पोस्टीरियर हमें दिख रहा है नेजल फैरिंग का, ये हमारा नीचे हमें दिख रहा है फ्लोर ऑफ द नोज जो हमने बात करी थी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, और यहाँ पे मैं सॉफ्ट पैलेट का रीजन आ गया है. ठीक है, दिस इज द स्फेनॉइड बोन. ठीक है, दिस इज द फ्रंटल बोन, दिस इज द नेयर. यू टोटली गेट इट. ठीक है, अगर हम वहाँ का म्यूकोजा हटा दें तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक. Okay, as you can see, these are the turbinates. So inferior turbinate, now we can talk about, is a independent bone. It's not a part of any other bone. It's just like an individual independent bone. ठीक है, it's completely separate. ठीक है, इसके नीचे हमारे हमने जो बात किया था inferior meatus होता है, और inferior meatus से क्या फायदा होता है, यहाँ पे एक ही ओपनिंग होती है अभी nasolacrimal duct. Okay, if you speak of the middle turbinate, so this is the middle turbinate. It has to be spoken in length because it's one of the most important turbinates that we have to speak of. So we can see in here. ठीक है, इसके नीचे होगा middle meatus. अब यहाँ पे कुछ projection होता है. As you can see, there is something called as uncinate process. Okay, so basically जो हमारा middle turbinate होता है, it's a part of the ethmoid bone. Okay, anterior ethmoid bone. का एक पार्ट है, निकल के आता है. It is attached to the lateral wall with ground lamella. Okay, so what is the importance of ground lamella in anything? You should just be knowing कि ground lamella के आगे जो भी cells होते हैं, ठीक है, those form the anterior cells of the anterior paranasal group of cells, और जो उसके पीछे होते हैं वो होते हैं posterior group of the paranasal sinuses. ठीक है, so this kind of divide, एक anatomical division होता है इसका. And this is the superior bone, superior turbinate, again a part of the ethmoid bone. Okay, ठीक है, अब let's go in about and read for the middle turbinate and the middle meatus. Okay, fine. ठीक है, so now we have a cut section to the turbinates. ठीक है, तो जब भी हम एंडोस्कोप लेके जाते हैं या फिर अगर एंडोस्कोपिक सर्जरी नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मली भी कर रहे हैं, so we have to flip off these turbinates a bit and then we can see the meatus beneath them. ठीक है, तो जैसे ये inferior turbinate है, ठीक है, ये inferior meatus है, यहाँ पे इसका पार्ट हमने जो overhanging पार्ट था वो कट कर दिया इस डायग्राम में, और ये जो है हमारा middle meatus है. So as we have spoken of, inferior meatus में एक ही ओपनिंग होती है NLD की. ठीक है, जो मिडिल meatus है
Now this has to be understood well. So firstly, what we have to know is, if you remember, we saw this thing here, this small green part, which is the unfinished process of the ethanol. Okay, so this when is lined, ठीक है ना, यहाँ पे unfinished process. Basically क्या होता है, जो unfinished process होता है, this runs parallelly to this. ये बड़ा सा एक दिख रहा है तुम्हें protuberance. So this is the ethmoidal bulla. Now what is bulla? Bulla जब हम कहते हैं is a air filled, right? So it is basically, this is the largest cell of the ethmoid bone. Okay, so this is ethmoidal bulla. अब इसी के पैरेलल चलता है वो अनफिनिश्ड प्रोसेस, ठीक है, आगे की तरफ। और ये बुला और ये अनफिनिश्ड प्रोसेस के बीच में ये जो आपको ये ग्रूव दिख रहा है, ठीक है, सो दिस इज द सेमिलुनर हाइटस और हाइटस सेमिलुनालिस, ठीक है, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए आपको। सो बेसिकली दिस इज द अनफिनिश्ड प्रोसेस, दिस इज द एथमोइडल बुला एंड दिस इज द हाइटस सेमिलुनालिस बिटवीन दीज टू। ओके, और अगर हम, ठीक है, तो एक ये तीन चीज़ें हो गए। और यहाँ पर इफ वी सी, ये जो आपको जहाँ पे ये आपका कट सेक्शन ऑफ द मिडल टर्बिनेट दिख रहा है, सो इमेजिन दैट स्पेस, राइट? सो medially we have got this middle turbinate wala area, okay, and laterally we have got the part of lamina papricium, okay. There are many other parts too, but I'm just simplifying it in just making you understand कि middle, जो middle है यहाँ पर हमारा unfinished process, और ये जो हमारा जो part दिख रहा है मिडिल टर्बिनेट का वो है, और जो लेटरली है वहाँ पर हमारे पास लेमाना पेप्रिसिया है। तो इसके बीच में ये जो जगह बनता है उसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ओके, all these have certain importance. We will be coming down to them one by one. Okay, so when we spoke of this region, seminal hiatus, why it is important? Because यहाँ पर हमारी opening आती है maxillary sinus की, almost उसके floor पर, ठीक है। So this is the first sinus opening that we are speaking of. जो हमने इस इन्फंडिबुलम की बात करी है, दिस एंटेरो सुपीरियर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे वी हैव द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटोनेजल साइनसेस, द फ्रंटोनेजल डक्ट बेसिकली। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फ्रंटल रीसेस, जो ये हमारा फ्रंटल साइनस होता है, इट फॉर्म्स अ फ्रंटल रीसेस कम इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है ना, यहाँ से एक फ्रंटोनेजल डक्ट फॉर्म करता है और यहाँ पे इन्फंडिबुलम पर आकर के उसको ड्रेन करता है, ठीक है, विच अगेन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मिडल मियाटस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंटल साइनस भी आ गया और एंटीरियर जैसे मॉडल सेल्स की जो बात हम कर रहे थे ग्राउंड लैमेला के आगे की, वो भी यहाँ पे ड्रेन कर दिया। ओके फाइन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो हम एथमोइडल बुला की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहीं पर ही इसके आगे में आर दी ड्रेनेज ऑफ दी मिडिल एथमोइडल सेल्स, ओके, जो बीच में ट्रांजैक्टरी सेल्स होते हैं वो यहीं पर आकर के रिले करते हैं। So all of these are important. Okay. If we go beyond it, just above the middle turbinate and a little posterior to it, we can see the superior meatus. Okay, तो superior meatus में हमारे पास कौन सा opening आएगा? Opening of the posterior ethmoidal cells. ठीक है. और यहाँ पे आपको एक एरो मार्क से दिख रहा है, so this is called as the sphenoido-ethmoidal recess. Why it is important? क्योंकि जो हमारा sphenoid sinus है, it drains through this sphenoethmoidal recess and then goes into the superior meatus. Okay, so these are basically the openings that we see into the lateral wall. Okay, and these are the major things that you should be knowing. अब आप पूछोगे कि मैम आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों हमें बताया है, अनफिनिश्ड प्रोसेस, ये एथमोइडल बुला एंड ये सब चीज़ें। तो बेसिकली एज वी हैव स्पोकन ऑफ, okay, so one of the most common sinusitis that we speak of, ठीक है, और sinusitis और chronic rhinosinusitis और complicated CRS और या फिर polyps, ये सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं, the most common sinus to be infected and affected is
मैक्सिलरी ईयर साइनस। बिल्कुल, तो इज द मैक्सिलरी साइनस। तो हमें बेसिकली अगर तुम मान के चलो कि इफ वी आर टेकिंग like 100 cases, we are going to find them in almost 80 cases, like मतलब अगर हम सिर्फ मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होने की बात करते हैं या फॉलोड बाय दैट इज ethmoidal sinuses, ओके, तो 80% हमें बस मैक्सिलरी साइनस क्लीन करना है या फिर हमें ethmoidal sinuses क्लियर करना है, ठीक है। सो वी हैव टू एंटर दीज साइनसेस एंड वी नो कि इनकी ओपनिंग जो है यहाँ पर होती है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज OMC, दैट इज ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहीं पे फॉर्म करता है ये जो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स की बात करी है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंटल साइनस भी खुल गया, एंटीरियर एथमोइडल सेल्स भी खुल गए, पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स भी खुल गए, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे 5 साइनसेस में से 3 साइनसेस की मेजर ओपनिंग यहीं पर ही आ गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो ओपनिंग आती है वो हम ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्सेस जो हम बात करते हैं कि अगर हम इस रीजन के ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे तो हमारा मेजर जो वेंटिलेशन है वो एस्टैब्लिश हो सकता है। So hence these structures are important because when you do it surgically, when you identify these structures, you know where and इसके anterior में कौन से cells आएंगे, posterior में कौन से cells आएंगे, इनके superior कौन से cells आएंगे, किसकी opening किससे आएगी. So these are all anatomical landmarks for you to understand structurally also and also physiologically and pathologically. Okay, get it? Any doubt? मैम एक बार ये OMC Mhm. वाली बात नहीं जो हाँ, OMC वाली बात में देखो बच्चे, नाम ही क्या है, ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स, मियाटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ऑस्टियो मीन्स बोन, मियाटिस हमने बात कर ली, ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है, तो बेसिकली यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना ओपनिंग्स, ठीक है, ये सारी साइनसेस की जो ओपनिंग हो गई, ये जो मिडिल टर्बनेट हो गया, ठीक है। हम अभी मिडिल टर्मिनेट की बात करें क्योंकि जैसे हमने बात कर ली है कि हम मान रहे हैं कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर, ठीक है ना, मतलब फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो एंड फॉर द पैथोलॉजी ऑल्सो इज द मिडिल टर्मिनेट हियर। दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड, यस मैम। ठीक है। हाँ, तो मिडिल टर्मिनेट पे हम फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जितनी भी ओपनिंग की बात करी, हमने बात करी ना, यहाँ पे एक इनफंडिबुलम पे एक ओपनिंग आ गई, एक हमारा ये हाइटस सेमिलर नारिस पर एक ओपनिंग आ गई, ठीक है, कुछ ओपनिंग इथमोइडल बुला के आगे के एंटीरियर पार्ट पे आ गई, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। सेकेंडली मतलब अगर इन सब में कहीं भी ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, हमारे साइनस का जो पिक्चर क्रिएट होता है, हमने जो बात कर रहे हैं, ऑल द पैथोलॉजी दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इन्फेक्टिविटी ऑफ साइनसेस, वो आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, अगर ये सारे ब्लॉक हो गए। अगर ये मिडिल टर्मिनेट की बात करते हैं, अब हम ऑस्टियो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें या फिर ये जो हम इथमोइडल बुला की बात करते हैं, ठीक है। So there is something called as concabulosa. Okay, so again there is a too much aeration or too much hypertrophy of this middle turbinate is also known as concabulosa, which is again if it is going to compress over these openings of the sinuses, it is going to create a blockage, right? ठीक है, तो अगर वो ब्लॉकेट करेगा तो अगेन क्या होगा, फिर वही साइकिल चलेगा जो साइनसाइटिस की हम बात करते हैं, राइनोसाइनसाइटिस की बात करते हैं। तो these complexes, ठीक है, has to be free of or rather I should say it should be so clear that they can do their normal function of ventilation, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। यस मैम। तो फिर हम सर्जिकली जो भी हम एम करते हैं हम यहीं पे एम करते हैं। कई बार ही आप मतलब ऐसे ही बता रही हूँ तुम्हें क्लिनिकली क्या होता है कि कई बार हमारे पास पेशेंट आता है ओपीडी में, ठीक है, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम बताते ही हैं। आई एम प्रीटी श्योर 1 out of 10 ऑफ यू विल बी हैविंग दैट प्रॉब्लम, क्या वो खुद ही बता दोगे कि यार मुझे साइनसाइटिस है, ओके। सो व्हेन वी गेट अ सीटी डन और व्हेन वी डू एन एंडोस्कोपी, ऑब्वियसली एंडोस्कोपी में हम इतना अंदर जाके सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे, बट व्हेन वी गेट अ सीटी डन एंड एवरीथिंग, द ओनली फाइंडिंग दैट वी गेट इज ओएमसी ब्लॉकेज, ओके। मतलब बाकी सब कुछ ठीक है, अंदर ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है, कुछ बोनी डिस्ट्रक्शन नहीं है, ज़्यादा इन्फेक्टिविटी भी नहीं है, ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, ठीक है, बस वो ब्लॉकेज है वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली हमारा जो वहाँ पे जो
क्लियरेंस का जो पाथवे है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की बात जो हम कहते हैं, वो जो पाथवे है वो यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार उस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कई बार ही अगर ऐसे पेशेंट में हम सिर्फ यहाँ पे ही अगर ओपनिंग क्लियर कर दें, ठीक है, यहाँ पे जो भी हाइपरट्रोफी हो रही है या फिर यहाँ पे म्यूकोजल जो भी कंजेशन हो रहा है या फिर जो प्लगिंग हो गई है, इन सारी चीज़ों को गॉट इट। सो हमने मेजर पार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर यार 2-3 सेल्स और आते हैं, जैसे हमने एक सेल की बात करी जो है हमारा बुला एथमोइडालिस। ओके, सो दिस इज लाइक द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एथमोइड बोन, राइट। तो ऐसे हर साइनस के एक एक मेजर सेल्स होते हैं जो सर्जिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम एंटीरियर टू दिस ये जो हमारा सेमिनारिस हाइटिस है, ठीक है ना, अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे एक सेल आता है जिसका हम नाम कहते हैं एगर निजाइटिस, which is almost at the floor of the frontal sinus, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट सर्जिकली बिकॉज अगर ये सेल नहीं होता है तो वी कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द एगोनाइज द फ्रंटल साइनस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। यू शुड बी जस्ट नोइंग द नेम्स ऑफ दीज। फिर एक देयर इज समथिंग नोन एज हैलर सेल्स, ठीक है। तो जो हमारे एंटीरियर एथमोइड सेल्स होते हैं उनमें एक सेल होता है जिसको हम हैलर सेल्स बोलते हैं। दिस अगेन like a part of identification as a landmark. And then there is a cell called as noddy cells, a part of the posterior ethmoidal sinus, ठीक है, just anterior to this sphenoid sinus। अब ये important क्यों होता है, ये surgically important होता है क्योंकि this surgically related to carotid, ठीक है, internal carotid arteries here, many nerves are here, maxillary nerve, ठीक है। So this is important in that way. Okay. So when we have spoken of the lateral wall, medial wall, so major of the anatomy is done. Okay. The arterial supply I'm not covering here because that will be covered when you will be speaking of epistaxis and everything. So ये वहाँ पे majorly ज़्यादा अच्छे से cover होगा. So we can just come to the physiological function of the nose here. Okay. Any question from the anatomy है? लमाइना कप्रेजिया लमाइना पेप्रेजिया क्या होता है, अपनी एनाटॉमी से बताइए। मैम ये याद नहीं है कि कहीं पढ़ा था। लमाइना पेप्रेजिया ऑर्बिट का पार्ट बनाता है, कुछ याद आ रहा है? पेपरी थिन। तुम्हारा डाउट क्या है, लमाइना पेप्रेजिया क्या है, या फिर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो जो हम इनफर्टिबुलम की बात कर रहे हैं उसमें लमाइना पेप्रेजिया कहाँ से आ गया? मैम लमाइना कप्रेजिया क्या है? लमाइना पेप्रेजिया इज अ पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ठीक है। अब मैं मेरे पास कोई ऑर्बिट का ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर, मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी। आई डू नॉट हैव दी, एक सेकेंड, I can show you something over here. Uh, hmm. ओके, सो यू जस्ट गॉट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत समझ जाओ, इसमें भी नहीं समझ में आएगा तुम्हें, बट ये जो हमारा ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो ये ऑर्बिट का वी हैव गॉट 7 पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट आल्सो, राइट। याद है ना एनाटॉमी से कुछ कि नहीं? ये भी मैं यस तुम्हें मैम याद है। याद है ना। so one of the यस part मैम। is lamina pepracia which is almost here, okay। यहाँ पे ये जो पार्ट हम कह रहे हैं ना, ये इट्स अ बोनी, इट्स अ वेरी टेप थिन बोन, ओके।
बहुत ही पतली बोन होती है, थोड़ा पीछे होता है यहाँ पर, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू अ पिक्चर एंड आई कैन शो यू दैट। इट इज हियर एंड नाउ। यू सी दिस, जहाँ पे हमने देखेंगे लैक्राइमल बोन की हमने बात करी, ये वाली पार्ट, ये दिख रहा है ऑर्बिट का पार्ट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हें लैक्राइमल बोन दिख रहा है और इसी के करस्पॉन्डिंग एक लैक्राइमल ग्रूव दिखा रहा है। यू कैन सी दिस, यस मैम। यू कैन सी दिस। तो बस इसके पोस्टीरियरली जाओगे तो यहाँ पे एकदम ऐसे पोस्टीरियर इंटीरियर पार्ट पे यहाँ पे एक पेपरी थिन एक बोन होता है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स में एक पार्ट होता है which I can show you here also maybe a little bit this side, clearly नहीं दिख रहा है but this is where exactly it is, okay, ये वाला part, ठीक है ना। So this is lamina praepacia. Okay, so lamina praepacia is a part which form the which form the medial wall of the maxillary bone. Okay, ठीक है। जो तुम्हारे जो तुम्हारे कहाँ पे करस्पॉन्डिंग आएगा, जो तुम्हारा लेटरल वॉल ऑफ द नोज है, जो तुम्हारा लेटरल वॉल ऑफ द नोज है, ठीक है ना, उसके लेटरल आता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ना, ये हमारा जो स्पेस है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो अगर हम देखें, जो मैं बात बता रही थी तुम्हें इनफंडिबुलम वाली पार्ट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, शायद इसमें थोड़ा सा क्लियर हो या फिर इसमें क्लियर हो, ठीक है। तो हमने ये टर्बिनेट्स की बात करी, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने जो बताया ना कि पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट पे लैमिना पेप्रेजिया होता है, ठीक है, वो यहाँ पर है। तो ये अगर ये हमारा मिडिल टर्बिनेट था और मैंने बोला था कि इनफंडिबुलम यहाँ आता है, ठीक है, समझ रहे थे, ये ग्रूव जो है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मैंने बोला था कि तुम्हें कि जो मिडल वॉल है वो कौन बना रहा था, अनसेनेट प्रोसेस, और जो पार्ट ऑफ मिडिल टर्बिनेट, और उसका जो लेटरल प्रोसेस, जो लेटरल वॉल था, वो बना रहा था तुम्हारा लैमिना पेप्रेजिया। तो दिस एरिया इज द इनफंडिबुलम। थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। अगर ये कट सेक्शन देखो तो ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये मैक्सिलरी साइनस के ये वॉल है, मीटल वॉल है, ठीक है। ये हमारा जो इथोमॉइडल साइनस का ये जो वॉल था विच इवेंचुअली मूव द inferior turbinate, and here it is forming the middle turbinate. Okay, inferior turbinate is an individual bone. Ethmoidal bone will form here a turbinate, middle turbinate. Okay, यहाँ पर, और यहीं पर ये वाला जो पार्ट है ऑर्बिट का, ये है तुम्हारा लैमिना पेप्रेजिया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस मैम। वो पोस्टीरियरली होगा, और जो हम ये जो बात कर रहे हैं एनएलडी की, ये थोड़ी एंटीरियरली है, क्योंकि लैक्राइमल जो बोन है वो एंटीरियर होता है। यहीं इसी के ग्रूव से निकल करके ये हमारा एनएलडी बन जाता है ना। और ये आकर के नीचे आकर के तुम्हारा इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे खुल जाता है। सो वी आर बेसिकली कंटिन्यूड योर क्वेश्चन ऑल्सो, एंड एक जो मुझे तुम्हें स्लाइड दिखानी थी एनएलडी का, वो भी तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। शुड वी मूव अहेड विद द फिजियोलॉजी? इट्स ओनली वन स्टूडेंट हु आंसर्स इन दिस क्वेश्चन एंड आस्क्स अ क्वेश्चन। बाकी लोग मुझे लगता है कि सिर्फ लोड इन हो जाते हैं, है क्या? और या फिर सबने इतना पढ़ लिया है कि मैडम क्लास ही क्यों ले रहे हैं। चलिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन विल जस्ट ब्रश थ्रू इट। हमने ये इनिशियली ही बात कर ली थी, ठीक है। सो देयर आर मेजरली 5 to 6 जो हमने बात किया है। तो आप अगर देखोगे तो जो हमने बात करी थी, वेयर द डिस्कशन स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है, एज यू आंसर कि मैम ऑल्फैक्शन, स्मेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, या फिर जो फंक्शन ऑफ इट, वो लिस्ट में सबसे लास्ट में है, दिख रहा है। So as I said, it is very important, because as we have discussed in here also, olfaction is important because it establishes a connection between you and the environment. So definitely olfaction is important. We need to smell things around for our protective mechanism, for our defense mechanism, which is important. And obviously, with the development of the artillery functions of the humans, uh, smell of the food and the likability of the food, the odor, the odorless, ये सारी चीजें add हो जाती हैं.
So पहला है respiration. So what is respiration? How does it help in respiration? So as we said, it's a natural pathway for the respiration. It is the gateway for respiration. The first thing that comes in contact with the air is our nasal epithelium, is the nasal mucosa. Okay, so it's there. The air will go through it, and the one thing that we know is since it's a natural breathing, तो जब हम babies होते हैं, ठीक है, तो babies are obligate what? Nose breathers, okay? They will be breathing by nose, ठीक है? इसलिए जैसे ही atresia होता है, they develop cyanosis या फिर respiratory distress because mouth breathing is an additive, is a functional learning of the brain जो हम eventually life में सीखते हैं, ठीक है? So a baby does not know how to breathe through mouth, how to use mouth for breathing, ठीक है? बेबी के लिए माउथ का काम जो है इज जस्ट फॉर इट्स ओन फीडिंग ओके सो इट कैन नॉट यूज माउथ फॉर ब्रीदिंग एज वेल एंड इज फीडिंग राइट सो हिंस it is very important. It helps in identifying corneal atresia at a very early stage. ठीक है so that is the significance of this here. So if you want to see the cycle, this is how it is. ठीक है so as you can see in the diagram, okay, so inspiration and expiration has a little different mechanism. So during inspiration the air enters through the anterior nares, goes through the as you said the lower part of the lower part of the nasal cavity, which is majorly the respiratory region, okay. So the air here is a laminar flow. So laminar flow में क्या होगा? It will just flow between nasal septum and the turbinates. ठीक है वो ज़्यादा फाइट नहीं करता है वो सीधे बस जो उसको स्पेस मिला जो कॉलम मिला उसके थ्रू एयर जाता है goes through it reaches the posterior foina goes into the nasopharynx and then into the respiratory tree that we speak of आगे ठीक है trachea lungs bronchitis everything while it is expelled out ना थोड़ा चेंजेस हो जाता है अब यहाँ पे क्या होता है जब वो जैसे ही एक्सपेल्ड आउट होता है अब वो सारे टर्बुलेंट्स जो है स्टार्ट हिटिंग इनटू द टर्बुलेंट्स ओके when it hits the turbinates it form the Eddy currents okay currents form होंगे अब वो laminar flow नहीं जा रहा अब वो इधर उधर करके flow करेंगे ठीक है ना and this will help in the movement of the air into the paranasal sinuses through these openings okay it will go into the paranasal sinuses ventilate them ठीक है वहां से वो करंट फ्लो करके फिर वो वापस आएगा एंड देन क्रॉस दिस एरिया गो बियॉन्ड इट एंड देन इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एंटीरियर नर्व्स समझना आया ये बात so it is in the expiration that the ventilation of the paranasal sinuses occur a very important point ठीक है got it yes ठीक है अब यहाँ पे एक पॉइंट जो बात करनी है जो हमने एनाटॉमी में बात नहीं करी थी मैं यहाँ पे वो पॉइंट रख देती हूँ कि जब हमने एंटीरियर जब हम इंटरनल नर्व्स की बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ इंटरनल नर्व्स की बात कर रहे थे तो देयर इज समथिंग नोन एज जो हमने जो वेस्टिब्यूल ऑफ नोज की बात करी थी जो एंटीरियर नर्व्स पीछे होता है स्किन लाइन वो जहाँ जैसे एंड होता है वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेजल वॉल ओके सो नाउ व्हाट इज नेजल वॉल ठीक है आप बोलोगे कि मैम टर्बुलेंट से अ वॉल भी है तो वॉल एज सच कुछ अलग से एक वॉल नहीं है कुछ बना हुआ नहीं है बट इट इज जस्ट अ बाउंडेड रीजन ठीक है विच यू कैन से इज फिजियोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ठीक है सो बेसिकली वो बाउंडेड क्या है वो मीडियली तुम्हारा नेजल सेप्टम होगा ठीक है जो तुम्हारा लेटरली है वो अपर कार्टिलेज जो था हमारा अपर लेटरल कार्टिलेज ठीक है उसका एंटीरियर एंड और जो इंफीरियर टर्बुलेंट होता है उसका एंटीरियर एंड ठीक है इन दोनों के पार्ट से लेटरली बनता है और फ्लोर जो हमारा होता है वो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी होता है ठीक है तो ये जो आप एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल रीजन आप इमेजिन कर सकते हो ना ठीक है तो ये एक तरीके से एनाटॉमिकली इज वन ऑफ द इज आई वुडंट से द नैरोएस्ट रीजन ठीक है बट येस इट इज अ कंस्ट्रक्ट रीजन हियर
तो यहाँ पे जो हम लैमिनार फ्लो की हम बात कर रहे थे कि जो नेजल कैविटी में जो एयर जाता है या फिर आता है, ठीक है, दिस इज द रीजन जहाँ पे उसकी टर्बुलेंस चेंज होती है, ठीक है, एयर फ्लो की, एयर करंट की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने जैसे बोला कि इट्स अ नैरोइंग ऑफ द नेजल कैविटी ओवर हियर, ठीक है. So why I'm talking about this? Because this is important physiologically and also cater surgically, because whenever we talk about septoplasties and everything, so if we are not going to treat this region in our septoplasties, okay, septoplasty लोग क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको क्या होता है, नेजल ऑप्शन होता है, ठीक है. सेप्टोप्लास्टी हम सबसे ज़्यादा किसमें करते हैं? डेविएटेड नेजल Previously on The सेप्टम Good वाले Doctor. रीजन We had the में, clinic at the hospital. ठीक है. अब डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा तो उसकी वजह से क्या Twisted होगा? from everyone the एक same. तरफ से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन Forgotten how क्रिएट हो important जाएगी. this decision is when you've been You dreaming know, about it for we won't years. be able to breathe through one of the nasal cavities very clearly, and hence there would be a problem manifesting You because saw of that. Carly Okay, again. How so was हम it? क्या करते हैं, हम सेप्टोप्लास्टी में हम Despite जो जो नेजल सेप्टम जो Onto the टेढ़ी हुई है हम pectoralis उसको सीधी flap. कर देते हैं, He's ठीक है. starting. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर Carotid नेजल clamp सेप्टम removed. जो टेढ़ी हुई पड़ी है वो इस रीजन में सीधी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमने नैरोएस्ट रीजन को ठीक नहीं किया, तो इमेजिन करो ऑलरेडी वो नैरो एरिया था और वहाँ पे So the नेजल pectoralis जो है flap सेप्टम vessels. वो डेविएटेड है डीएनएस की वजह से, First. तो वो नैरोएस्ट जो एरिया है वो और भी नैरो हो जाती है. और अगर हमने सर्जिकली आगे पीछे हर जगह से कार्टिलेज हटा दिया, बोन हटा दिया और हमने इस रीजन से नहीं हटाया, तो It क्या didn't हो matter जाएगा? about the कोई first फ़ायदा नहीं है surgery सर्जरी to का, me. बिकॉज अभी भी एयर यहाँ पे है, जो जहाँ पे उसका टर्बुलेंस चेंज हो रहा है, जहाँ पे उसको कंस्ट्रिक्टिव हो रहा है वो एयर करंट, वो रीजन हमने ठीक नहीं किए, ठीक है. So this is the elaborative explanation of nasal wall, which you need not to remember if you are not to remember, but yes, this is the idea of it. Hence we talk about nasal wall here. Cool enough? यस क्लास हो गया हो तो बता दो, ये भी बता दो मुझे. नहीं ना? ठीक. सो एयर करंट से हमने दो बातें कर ली. इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, हमने नेजल वॉल की बात कर ली, जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो कोलैबोरेशन था उसका. और जो थर्डली हमें बात करना है वो है एक नेजल साइकिल की. तो नेजल साइकिल बेसिकली व्हाट इज अ नेजल साइकिल? So every 2.5 hours and 4 hours there is a nasal congestion and decongestion due to the involvement of the autonomic nervous system. ठीक है. तो it is richly supplied. Nasal mucosa is richly supplied with a lot of nerves. ठीक है. And also with parasympathetic and sympathetic nerve system as well. Okay. तो इनका alternative decongestion congestion होते रहता है. It is because अब ये तुम पूछोगे कि क्यों होता है डिकंजेशन कंजेशन. ये इसीलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि मेजर, यहाँ पे बहुत सारे साइनसॉइड्स हैं, बहुत सारा कैपिलरीज है, जैसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स है. वी जस्ट वांट द मैक्सिमम वेंटिलेशन. यू नो, ये सारी चीज़ें सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस तरीके से हुआ है कि हम जितना एयर लेते हैं हम उसको पूरे एक तरीके से उसका जितना भी हम उसका पीक और उसकी नर्चरिंग करनी है, उसका ह्यूमिडिफिकेशन करना है उसका, तो उन सब चीज़ों के लिए ये एरिया स्पेस एरिया बढ़ाने के लिए किया गया, एयर कंडीशनिंग के लिए. ठीक है. तो इसमें ये एक्शन आ जाता है. ठीक है. तो ये एक्शन आएगा तो क्या करेगा? व्हाट इज बेसिकली नेजल साइकिल? इट विल कि हर एक साइकिल में ओनली वन नेजल कैविटी इज एक्टिव. ठीक है. जो वो डी, हाँ, वो एवरी 2.5 to 4 hours साइकिल चेंज होता है एंड द अदर नेजल कैविटी गेट्स एक्टिवेटेड. ओके. बट इट इज कॉम्पनसेटरी, मतलब कि व्हेन वन नेजल कैविटी इज एक्टिव इट एक्ट फॉर बोथ द नेजल कैविटीज. ओके. तो अगर आप कभी रियलाइज करोगे, कभी एक्टिवली अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अगर आप नोटिस करोगे, तो यू विल रियलाइज कि आपका एक साइड ही एक्टिव है. एंड दीज आर दी बेसिक for the mechanism of the योग that we say, अनुलोम विलोम, हम ये सब जो बात करते हैं. ठीक है. these are the part of it. okay. अनुलोम विलोम का पार्ट नेजल साइकिल है, और जो हम और क्या करते हैं, एक और चीज़ क्या करते हैं जिसकी वजह से पैरानेजल साइनसेस जो हम बताए वो वेंटिलेट हो रहा है. हम कपालभाति. बिल्कुल. ठीक है. तो कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम पोस्ट एक्सपिरेशन ही कर रहे होते हैं ना, और कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं. ठीक है. सो हियर इट कम्स आउट. सो इट्स वेरी साइंटिफिक ना, आवर ओल्ड थिंग्स दैट हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे सेजेस, दे हैव
been doing it for so long and they knew everything why they were doing all of it. ठीक है. So when we come down, अब हमने ये बात कर ली, एक रेस्पिरेशन की बात कर ली. सेकंड काम क्या है? एयर कंडीशनिंग है. एयर कंडीशनिंग में क्या क्या है? हमें उनको ह्यूमिडिफाई करना है और हमें उससे पहला तो हमें उसका फिल्ट्रेशन करना और प्यूरिफिकेशन करना है. सेकेंडली हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और थर्डली हम उसका ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे. ठीक है. सो प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन? एज वी हैव स्पोकन ऑफ, जो स्किन लाइन रीजन होता है जहाँ पे हेयर्स होते हैं, कोलुमुला वाला जो रीजन था और उसके पीछे और कौन सा रीजन था जो वेस्टिब्यूल वाला रीजन था, इट हैज गॉट हेयर. नाउ दीज हेयर फॉलिकल्स आर आल्सो नोन एज द विब्रेसिल, नेजल विब्रेसिल ओवर हियर. तो इनका काम क्या होगा? हेयर का हर जगह एक ही काम है. ईयर में क्या काम था? entrapment of the foreign particles, here also entrapment of the foreign particles. तो यहाँ पे जो filtration होगा, so these hairs can take up dust, pollen, you know, the larger particles like cotton and जो major dust होते हैं बड़े वाले जो. So almost until it is called as 3 microns के size का सब यहाँ पे entrapment हो सकता है. ठीक है ना. एंड जो नेजल म्यूकोजा है फर्दर कैन entrap फ्रॉम साइजेस 0.5 to 3 माइक्रोन. ठीक है. तो इसका मतलब ये होता है कि 0.5 से जो नीचे होगा वो तो जाएगा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है ना. बट 0.5 माइक्रोन इज ऑल्सो वेरी स्मॉलर डायमेंशन इन दैट रिगार्ड. तो जो सोचो फिल्ट्रेशन है वो हमारे तो विब्रेसा और म्यूकोजा मिलके ही करते हैं. ठीक है. और एक प्यूरिफिकेशन भी कर देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली द एयर इज प्यूरिफाइड, टेकिंग अवे ऑल दीज अनवांटेड मटेरियल्स आउट ऑफ द एयर. सेकेंडली द टेम्परेचर कंट्रोल एंड द heat exchange. So what basically happens is कि so basically हमने hot air लिया हो या cold air लिया, it has to be stabilized to a temperature which is to the body temperature. ठीक है. So as we have spoken of, there are many capillaries, there are a lot the vascular, it's highly vascular. There are a lot many cavernous, venous spaces and sinusoids. All these help as the radiators. Basically ये जो turbinates हैं इनकी जो mucosa है. ठीक है. तो यही blood flow की वजह से क्या होगा? There would be a heat exchange and the inspired air would be brought down or brought up to the temperature required, which is the body temperature. तो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हवा ले लो, 0 डिग्री ले लो या सब सब जीरो टेम्परेचर, all of these can be brought up to 37 degrees, which is the body temperature. Okay. And lastly is the humidification. Humidification क्या होता है? So basically we need some moisture in the air that we are inspiring. Okay. So all these mucosa that we have inside, right, ये जो भी एयर आता है उनके मॉइस्चर कंटेंट को इक्वलाइज कर देगा. क्यों? क्योंकि एज वी नो देयर इज अ मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंस बिटवीन इन ऑल द सीजन्स. गर्मियों में वी हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट, सर्दियों में वी हैव अ लॉट ड्राई एयर. तो ये सारी चीज़ें हैं कॉम्पनसेट होनी होती हैं. एंड वी से कि ऑलमोस्ट 50 to 75% of the humidification has to be done, like it needs to be having 50 to 75% of moisture content in the air that is inspired. तो ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. It is important. Why humidification? आप क्यों बोलते हो कि moisture content important है? क्योंकि अगर moisture content नहीं होगा air में तो this will lead up to the drying of the nasal mucosa. Okay. So अगर nasal mucosa dry हो जाएगा, there is a crusting, it will get dried up, there will be a as we say, there is regression of the nasal mucosa. All of this leading to the destruction of the cilia present over the nasal mucosa, right? और अगर ciliary destruction हो गया, ciliary dysfunction हो गया, तो हमारे ये जो पूरा कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा फिजियोलॉजी का, जो अभी भी पढ़ेंगे, जो हम अभी पैरानेजल साइनसेस और इन सब की जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की हम जो बात कर रहे थे, ये जितने भी साइनसेस थे दे गेट ड्रेन्ड ऑफ इनटू द नेजल कैविटी. दिस इज बिकॉज ऑफ द म्यूकोसिलरी क्लियरेंस. अब ये जो हमारे सीलिया ही खराब हो जाएंगे, तो ये म्यूकोजा, ये जो हमारी जितने भी म्यूकस जो
प्रोडक्शन हो रहा है सारे साइनसेस में, ये हमारे ड्रेन आउट नहीं हो पाएंगे. अगर ड्रेन आउट होंगे तो दे विल गेट एक्यूमुलेटेड. इफ दे गेट एक्यूमुलेटेड देन there would be an infectivity and the cycle will go on. So hence humidification of air becomes very important, which is done by nose, the nasal cavity and its mucosa. Get it? The third important work would be the protection of the lower airway. ये तो protection of the upper airway था जिसके वजह से सब कुछ कर रहा था. अब lower airway की हमने पहले जो बात कर ली कि ये सारा जो हमने बात किया, entrapment of the particles, all the levels, which is important, which is done. Then the next is ये मैकेनिकल था. जो सेकंड होता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है. अब क्या होता है ना, as we spoke of, these nasal mucosa are lined with cilias over them. ठीक है, तो ये cilia क्या होता है अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, so all these goblet cells and the mucous cells that is which lines up the nasal mucosa have got cilias over them. तो ये क्या करते हैं ना, इनकी वजह से क्या बन रहा है, ये सीलिया के ऊपर हमारे जितना भी ये गॉबलेट सेल ये जो म्यूकस बनाता है कि इसके ऊपर चले जाकर के बैठ जाता है. तो इसको एक सॉल जेल थ्योरी जैसे मान के चल सकते हैं. एक म्यूकस लेयर ऊपर है, एक सीरस लेयर ही है. ठीक है, और ये एक तरीके से हम जो कहते हैं ये कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म नाम की तरह है. अब क्या होता है, ये जो भी पार्टिकल हमने जो बात किया ना जो नोज के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, अब ये इसके ऊपर ट्रैवल करेगा. इट विल नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द नेजल म्यूकोसा. इट विल जस्ट गो ऑन टू ऊपर. ठीक है, एंड ये जो है इसका क्या होता है, इसमें एक इनके में स्ट्रोक बनता है. मतलब दिस इज अ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ दिस एंटायर म्यूकोसा एज वी से. ठीक है, तो ये जो म्यूकोसेलुलर क्लियरेंस और ये सॉइल ये जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों जगह अप्लाइड है, म्यूकोसा के अंदर भी और ये पैरानेजल साइनसेस के म्यूकोसा के अंदर भी. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो सीलिया है दे हैव अ मूवमेंट टू वर्ड साइड. जैसे ये एक तरफ मूव करते हैं, ये सारा जो ये सॉल जेल जो हमने कॉम्बिनेशन की बात करी है म्यूकोसा और सीरस की, दे गो अहेड. ठीक है, ये आगे जाते हैं. As you can see, this will go आगे, move ahead and in one direction. So ये सारे डायरेक्शन स्पेसिफाइड हैं हर साइनसेस के अंदर. ठीक है, फ्रंटल साइनस विल गो टूवर्ड्स दी जो ओपनिंग हमने बात करी थी, उसके ओपनिंग के तरफ में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मॉडल सेल्स है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव ओपनिंग है. ये सारे सीलियास उस तरफ बीट करेंगे. ठीक है, टू मेक दोज म्यूकस inside the sinuses move out towards the opening. You get it? And hence the protection mechanism is generated. तो कोई भी चीज़ होगी, कोई भी unnecessary unwanted particles, bacteria, organisms, everything is expelled out of it. You get it? So there is something called as affective stroke and there is something called as recovery stroke. I think now you understand that. Affective stroke is when cilia goes into the direction of the openings. ठीक है, making the entire mucus move forward toward that end. और जब वो रिलैक्स करता है तो वो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाता है, वापस आ जाता है और न्यू म्यूकस जो जनरेट होता है वो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, so this is the mucociliary clearance. Then we have some immunological protection. Is we know it's a part of the immunity, so it has a lot of lysozymes. It has lactoferrins. It has got pediatric proteins, macrophages, all embedded into it. Then it has got a surface protein, which is the physical characteristic of mucus that we have already spoken of. अगर acquired immunity की बात करें तो ये सारे IgE, IgA ये सारे वहाँ पर होते ही हैं. ठीक है, a lot of polymorphs, a lot of macrophages is present. Okay, and the last would be the sneezing. It's like a reflex, a protective reflex. So कोई भी चीज़, any foreign particle which is going to irritate the nasal mucosa is going to be expelled out by this reflex of sneezing. Okay, so all of this makes up the part of the protection of the lower airway. अब जो दो और जो physiological function है, one is the vocal resonance. As we understand, paranasal sinuses along with the nasal cavity adds up into the resonance of the vocal production, which is majorly done by the larynx, the vocal cords. ये vocal cords से जो अब again जो speech production होता है, it is in during the expiration. ठीक है, तो अगर हम इस मैकेनिज्म के नीचे से बात करें तो लंग्स जैसे वो एक्सपायर करता है, ठीक है,
expired out these expired out when they cross the vocal cords. They produce mucosal waves. They cause vibration in these vocal cords, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब जब ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जब ये आकर के नेजोफैरिंक्स पे आता है, ओरोफैरिंक्स में आता है, ठीक है, तो ओरोफैरिंक्स में तो आर्टिकुलेशन होगा. ओरोफैरिंक्स क्रॉस करके जब ओरल कैविटी में आएगा तो आर्टिकुलेशन ऑफ दो साउंड्स होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये आर्टिकुलेट हो जाते हैं. ए बी सी डी हम जो बात करते हैं, फिर जो क ख ग घ की बात हम करते हैं, ये फॉर्मेशन आता है. जैसे लिप्स है और सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट और टंग, ये सारे जब इनसे वर्क करते हैं, दे ट्राई टू पुट दोज वॉइसेस दैट हैज कम थ्रू द वोकल कॉर्ड, दे ट्राई टू मेक इट इनटू अ स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफिक साउंड, राइट. एंड अलॉन्ग विद इट, जब वो नेजोफैरिंक्स के थ्रू आके नेजल कैविटी और पैरानेजल साइनसेस की तरफ जाता है, so the resonance is added to these sounds. ओके, यहाँ ये क्योंकि रेजोनेटिंग चेम्बर है, ठीक है, ये सारे जो हम कुछ कुछ कॉन्सोनेंट्स जो स्पीच के होते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें ऐड करता है. आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इनटू इट, बट इट्स देयर इन योर बुक आल्सो एंड इट्स देयर ऑन दिस स्लाइड आल्सो. So if you want to do, you can see when we speak of M, N, G, we all know it is just not the articulation, it is just not the vocal cord, it is also coming out from the nasal cavity and the, as we say, the resonator of the uh, paranasal sinuses. Because जैसे ही हमारी नाक बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज होता है, we know all these things changes into, as the example is there, जैसे M is sound as B, N is sound as D, and NNG वाला जो sound है is sound as G. ठीक है. So how important it is to create that sound effect that is vocal resonance over here. Okay. And two terms that you should be knowing is rhinolalia clausa and rhinolalia aperta. Clausa is जब कंजेस्टेड होगा तो बहुत कम एयर जा रहा तो, और अपर्टा इज जब हम लोग अपर्टा कहते हैं कि जब एट्रोफी हो जाती है, नीजल म्यूकोसा एट्रोफी हो जाती है साइनसेस कि वहाँ पे वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर हाई आर्ज पैलेट होता है, तो इन सब की वजह से वहाँ पे क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन which has a nasal tone to it. Okay. Olfaction, as we have spoken, will not be going much into the details of the olfactory, the pathways and everything that you should be just knowing. And since we are not left with much of time, just go through this from the book. It's not much of it. You can just see the olfaction pathway. Okay, there is an olfactory bulb into the olfactory region which takes up the the nasal mucosa are widespread with the olfactory nerves over there, very sensitive. They take up the smell, which is they all go and combine to the olfactory bulb, and जहाँ से फिर वो the impulses are taken to the which area? Olfactory gyrus. 28. Bodman area 28. Olfactory gyrus. Olfactory gyrus. तो फिर वहाँ से फिर जो है olfaction वहाँ से फिर develop होता है. What you should be knowing are the disorders. There are three names: anosmia, hyposmia, and parosmia. Anosmia जो हम now you totally know what anosmia is, as we spoke of. Very common these days. There's a complete loss of sensation of the smell, which could be due to a lot many reasons. Okay, traumatic reasons or inflammatory reasons. Inflammatory being one of the most common cause. As we know, even in COVID, that's the main reason. ठीक है ना? Because nasopharynx, nose and nasopharynx are the hub of the virus here. Okay, so we know there is a lot of congestion, there is a lot of inflammation. Previously on The Good So Doctor. अगर upper We had the part में clinic at the inflammation हो hospital. जाएगा और Come nose back में as inflammation pass on हो जाते हैं, so there is a state of anosmia there. Okay, what is hyposmia? Hyposmia is a partial loss. Okay, अगर कुछ nerves काम नहीं कर रहे हैं, अगर partial inflammation हो रहा है, it's not a very active inflammation, then you can have hyposmia. And then there is something called as parosmia, और या फिर जिसको केकोस्मिया भी हम एक तरह से कर सकते हैं. तो इसमें होता है कि you are not able to identify the smells perfectly and correctly. ठीक है, interpretation becomes incorrect. ठीक है, और you sometimes there is a perversion of smell जो हम कहते हैं, मतलब कि you have a feeling that you are smelling
odors and everything. So those, in that state is known as paraosmosis. So I think we have majorly, you know, touched almost every part of it, anatomy and the physiology of meat. Not much is left. If you have any queries, you can ask. Okay. All I want to tell you from my end is I think there was a class scheduled for you जिस दिन आपकी ईद की छुट्टी हो गई थी. So I think that class is left, tuning folk test and everything. So I'll try to compensate that class on some day. Maybe if I have a class later on, then that day itself, and if I'm not able to take that class up on that day, so maybe with someone else's I will combine. So you might have 2 lectures on the same day. Okay, ज़्यादा लंबा नहीं है lecture, तो एक दिन में हो जाएगा. ठीक है, so that will be taken care of. Rest, let me know if you have any queries from today's lecture. So we can have a discussion over it. ground lamina. Ground lamella. Okay, lamella. LAMELLA. तो ये क्या होता है बेसिकली. ओके, सो आई जस्ट शो यू दिस. आपने अगर डायग्राम में बस थोड़ा सा इतना समझ लिया होगा तो ये देखो, मिडिल टर्बनेट है. मिडिल टर्बनेट इज अ पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन, ऐसे समझो. ठीक है, एथमॉइड बोन ये चल रहा है यहाँ पे. एथमॉइड बोन के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, परपेंडिकुलर बोन आएगा. ठीक है ना, उसके फिर ये एक एक प्लेट आती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इसके ना एक प्रोजेक्शन है, जिसका एक प्रोजेक्शन को हमने बोल दिया मिडिल टर्बनेट. अभी जो मिडिल टर्बनेट है, ये जो तुम्हारा मेन बॉडी ऑफ जो एथमॉइड बोन चल रहा है उससे कनेक्टेड कैसे है. वो कनेक्टेड है तुम्हारे इस ग्राउंड लैमेला से. तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, कंसिडर टू बी अ ग्राउंड लैमेला. ठीक है, ये चीज़. अब ग्राउंड लैमेला को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, ठीक है ना, ये जो कनेक्टर है, तुम समझ रहे हो. एक आप एक वर्टिकल एक बोन इमेजिन करो और उसे एक हॉरिजॉन्टल एक टर्बनेट इमेजिन करो. समझ गए? Yes, ma'am. समझ गए. तो ये जो वर्टिकल पार्ट है वो तुम्हारा लेटरल वॉल है, और लेटरल वॉल से एक प्रोजेक्शन निकला जिसको हम मिडिल टर्बनेट बोल रहे हैं. ठीक है, ये हमारा एथमॉइड बोन का पार्ट हो रहा है. तो ये जो कनेक्शन जो है, ये जो टर्बनेट का ओवर दिस वर्टिकल पार्ट, द वर्टिकल बोन, दिस कनेक्शन इज नोन एज ग्राउंड लैमेला. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है दो वजह से. तुम अब बोलोगे कि मैम कनेक्शन का भी नाम देने की क्या जरूरत था, मतलब जहाँ पे बोन कनेक्ट हो रहा है मेन बोन से. तो इसके दो रीजन इसीलिए हैं क्योंकि हमने तुम्हें बताया स्ट्रक्चरली कि इसके आगे जो भी सेल्स हैं हमने एनाटॉमिकली उसको क्या किया, सर्जिकली और एनाटॉमिकली हमने डिवाइड कर दिया कि इसके आगे जितने भी सेल्स होंगे और तो हम उनको एंटीरियर ग्रुप ऑफ सेल्स बोल देंगे, और उसके पीछे जो होंगे उनको हम पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ सेल्स बोल देंगे. ठीक है, इन जनरल पैरानेजल साइनसेस के लिए. अब अगर और स्पेसिफिक देखोगे तो एथमॉइड बोन के ही जो सेल्स हैं वो इस ग्राउंड लैमेला के बेसिस पर एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड होते हैं. तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर एंटीरियर एथमॉइड सेल्स, so you are going to say all those cells of the ethmoid sinuses which lie anterior to ground lamella. Okay, and all those cells which lie behind it are known as the posterior ethmoidal cells. समझ में आया? तो ये पहला रीजन. Yes. ठीक है. दूसरा रीजन हमने इस पार्ट को क्यों किया, क्योंकि ये जो कनेक्शन तुम जो इमेजिन कर रहे हो, स्ट्रेट जो इमेजिन कर रहे हो, ये एक्चुअली स्ट्रेट है नहीं. ये थोड़ा एच शेप होता है, थोड़ा कर्वेशियस होता है, थोड़ा एच शेप जैसा बनता है. इट ऑल्सो हैज गॉट अ पार्ट. अब वो पार्ट आप समझ नहीं पाओगे. ठीक है, इट्स देयर इन ढिंगरा. ट्राई टू रीड इट एंड इमेजिन इट. जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तुम्हारा जो होता है वो सैजिटल प्लेन में होता है. ठीक है, जो तुम्हारा मिडिल पार्ट होता है वो तुम्हारा फ्रंटल प्लेन में होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. तो एक तरीके से एस शेप बन जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा हमने अलग से नाम भी दिया है क्योंकि इट इज थोड़ा एनाटॉमिकली क्रिटिकल होता है. ठीक है. एंड थर्डली द रीजन हियर इज this is the landmark the moment when we do surgery. Okay, we know, अगर मान लो तुमने कोई पेशेंट प्लान किया और तुम्हें पता है कि पेशेंट में हमें जितना भी जो डिजीज मिल रहा है वो सिर्फ एंटीरियर पार्ट में है, और मतलब सिर्फ एंटीरियर सेल्स ऑफ एथमॉइड में है और मैक्सिलरी साइनस में. तो तुम्हें पता है कि वी नीड नॉट टू गो बियॉन्ड ग्राउंड लैमेला. समझ में आया? अब जब सर्जिकली आप कर रहे हो, आप यू आइडेंटिफाई ग्राउंड लैमेला, यू नो दिस इज द कनेक्शन
between this perpendicular plate that we are talking of, this vertical bone of the ethmoidal bone, ये जो middle turbinate लिखना है, oh yes, this is the ground lamella, यहाँ पे connection है, okay, मुझे इसके पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे इसके आगे आके जितने भी cells हैं इनको clear कर देना है, and my job is done. You got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So बोलने के लिए या you actually got it? नहीं नहीं मैम एक्चुअली गॉट इट. अच्छा. So this is the question for the other batch, students of the class. Anish is not going to answer this. So is Anish one of the toppers of your class? Yes, ma'am. Anna seems like because it's completely like he totally knows what he's asking, what he's doing. But that's very good, Anish. But yeah, I'm pretty sure जो नहीं बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं classes को, because at the end of the day, this is what I'm trying to deliver it to you. You know what you have read it in the class, and it becomes easier for you when you go back and if you at least make an attempt to read the book, or at least I can create that interest in you so that you feel like going and opening the book for once. Okay? I hope I'm delivering that right to all of you and not just to one student. Okay, so I think we can call this session on. Okay, so have a great day, and I'll let you know of the other class when it has to be conducted. Okay, thank you so very much. Have a good day.